Hello, my dear friends and students. How are you? I hope you are fine. I am also fine. Take care of yourself as the weather is changing day by day. So, in today's class, we will discuss the motion chapter and the topic is velocity time graph. Before going to the topic, let me tell you the today's thought. Today's thought is education is the most powerful weapon you can use to change the world. एजुकेशन एक ऐसा आपके पास पावरफुल शक्तिशाली हथियार है जिसकी हेल्प से जिसके इस्तेमाल से आप पूरी दुनिया को बदल सकते हो। आपने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखे होंगे हमारे सराउंडिंग में जो लोग एजुकेशन लेकर दूसरे लोगों को हेल्प करते हैं, उनको सहारा बनाते हैं और हमारे सोसाइटी या समाज को उठाने के लिए बहुत सारे प्रयास, बहुत सारे एफर्ट्स करते हैं। So now I am also here to tell you about the motion chapter. Now we are going to start the topic. Now we will discuss the velocity time graph. Here we will discuss 3 to 4 cases in the velocity time graph. Now the first case is when the object is at rest. It means it is not moving. Whenever any object is not moving, so its velocity, it does not have a velocity. उसमें कोई velocity नहीं होगी. And the graph is in between the time axis and the velocity axis. Means x axis and y axis में graph होगा. Y axis will represent the velocity physical factor and the x axis will represent the time physical factor. Whenever any object is at rest, the nature of the graph will be parallel to the time axis because it does not have any kind of the velocity. Now the second case is when the object is in the uniform accelerated motion, it does not have any initial velocity, initially it is at rest. So the graph will be, the nature of the graph will be a straight line, as we have discussed this type of the case in the distance time graph कि जितने भी यूनिफॉर्म मोशन होते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है, उनका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है। एंड इन दिस केस वी विल कैलकुलेट द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे। एंड द फॉर्मूला हाउ वी कैन कैलकुलेट द स्लोप वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो। नाउ आई विल एक्सप्लेन ओनली what is the slope of velocity time graph in this scenario, and the slope of velocity time graph will represent the acceleration. You got it? I think आपको समझ में आया होगा. So please note this scenario. Now let us discuss the third case when the object has some finite initial velocity and also showing the uniform accelerated motion. In this case, the graph between velocity and time axis is also a straight line, but the nature is it does not passes through the origin. The graph is a straight line. You can say that graph is a straight line, but does not passes through origin. बेटा इस तरह के ग्राफ में आपको ये याद रखना है या ये ध्यान रखना है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट की कुछ इनिशियल वेलोसिटी है और वो उसके बाद उस इनिशियल वेलोसिटी के बाद वो क्या कर रहा है, यूनिफॉर्मली मोशन दिखा रहा है, ठीक है। तो उस केस में आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो एक ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसकी वेलोसिटी और टाइम दोनों इक्वली चेंजेस हो रहे हैं। उनमें जो मतलब एक तरह से उनमें जो अंदर आ रहा है, डिफरेंसेस है वो सेम है, इक्वली उनके अंदर डिफरेंस है। तो उनका जो ग्राफ होगा वो एक ऐसा ग्राफ बनेगा जो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, इसलिए वो ओरिजिन से पास नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट केस है व्हेन
object shows uniformly retarded motion. Means we have discussed that the acceleration is of two types, positive acceleration and negative acceleration, and negative acceleration is called retardation. तो यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इसमें और इससे प्रीवियस सेकंड केस में, लेकिन अब नेक्स्ट केस हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन दिखा रहा है, लेकिन वो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है या कैसा है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, जिसे हम रिटार्डेड मोशन या रिटार्डेशन कह सकते हैं। तो देखिए ग्राफ किस तरीके से बनता है बच्चे। The graph is like a straight line also, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन कहाँ होगी, एक तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि उस मोशन की वेलोसिटी टाइम के साथ इक्वली डिक्रीज हो रही है। फॉर एग्जांपल पहले 60 थी, ठीक है, फिर 10 सेकेंड्स में 50 हो गई, फिर 10 सेकेंड्स में 40 हो गई, तो इस तरीके से तो यूनिफॉर्मली वो चेंज हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है, वो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा और क्लासेस को भी एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है आपको, स्टार्टिंग से आपको ये चीजें लेके चलनी है अभी। ठीक है, तो जल्दी हम इसको कंप्लीट करेंगे। और प्लीज एजुकेशन एक ऐसी रियलिटी में एक ऐसी वेपन है जो आपके वर्ल्ड को, पूरे वर्ल्ड को चेंज कर देगी। ठीक है, तो एजुकेशन में ही आप कुछ कर सकते हैं, मतलब बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड। ये मेरा सिनेरियो है कि बुक्स आपकी एक बेस्ट फ्रेंड होती है। ठीक है, ठीक है, एज यूजुअली फ्रेंड्स तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन बुक्स एक ऐसी चीज है जो आपको कभी गिरने नहीं देती है। समझ रहे हैं आप अच्छे से? तो बेटा इनको ध्यान से पढ़ना है कंसेप्ट्स को। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है मोशन चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो ये दो सिनेरियो नोट कीजिए, फिर इसके बाद लास्ट नॉन यूनिफॉर्म का केस डिस्कस करेंगे। So let us discuss the next fifth last case. In this case, the object is going or showing the non-uniform accelerated motion. Object non-uniformly अपना motion show कर रहा है, जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल होता है। ठीक है, कि जैसे आप ट्रैफिक में चल रहे हो तो आपको क्या करना है, बार बार ब्रेक्स अप्लाई करने हैं। यदि आपका रोड स्मूथ है, मतलब हाईवेज वगैरह है, तो आपकी स्पीड अच्छी होगी। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमेशा कर्व लाइन ग्राफ आता है। ये चीज हमने आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी डिस्कस की थी। तो वो कर्व कैसा भी हो सकता है आपका। तो यहाँ पर हमने अपना टॉपिक वेलोसिटी टाइम ग्राफ कंप्लीट किया है। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि ग्राफ की हेल्प से हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को कैसे प्रूव करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। और एग्जाम्स में या क्लास टेस्ट में भी आने के चांसेस होते हैं 4 to 5 मार्क्स में, कि हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को हम ग्राफ की हेल्प से कैसे उसका डेरिवेशन करते हैं, उसको प्रूव करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक वही करते हैं। Now let us discuss the derivation of the equation of motion by graphical method. In this topic, firstly we will discuss the how to derivate or how to calculate or derive the first equation of motion, which is v is equals to u plus at. तो सबसे पहले हमें कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स लिखने पड़ेंगे जिसके हमें मार्क्स या 1 और 2 मार्क्स मिलते हैं। तो देखिए पहले मैंने एक ग्राफ बनाया है। उस ग्राफ में हमने एक्स एक्सिस से हमने टाइम को रिप्रेजेंट किया है, वाई एक्सिस पे हमने वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया है। और एक ऐसा ग्राफ मींस एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, इट हैज सम इनिशियल वेलोसिटी u एंड आफ्टर दैट इट्स मोशन इज यूनिफॉर्म, सो इट हैज सम वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इज v एंड इट इज एक्सीलरेटेड। तो एक्सीलरेशन इज a। तो ये कुछ चीजें आपको सिनेरियो में 1 और 2 मार्क्स के लिए लिखनी पड़ेंगी। इनके मार्क्स का मतलब डेरिवेशन कह सकते हो, डेरिवेशन में इनके अलग मार्क्स होते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमें देखो ग्राफ को हमने इसमें मतलब अपने ग्राफ को कंप्लीट किया है इस तरीके से। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर ए ओ जी और बी ये एक रेक्टेंगल है, तो ए ओ अगर यू इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बी और जी भी किसको
किसको रिप्रेजेंट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी को। तो हम यहाँ दे सकते हैं कि ग्राफ से AO इज इक्वल टू BG विच रिप्रेजेंट द इनिशियल वेलोसिटी U। ऐसे D और O मिलकर फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहां से C और G भी कर रहे हैं आपकी फाइनल वेलोसिटी V को रिप्रेजेंट। O और G टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, OG इज इक्वल टू AB, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है, विच इज इक्वल टू DC, और किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां तक समझ में आया। अब देखो ये पूरी D से O तक क्या है, आपके पास V वेलोसिटी है, और A से O तक क्या है, तो आपको बीच की वेलोसिटी निकालनी है। D और A किसके इक्वल है, DO माइनस AO विच इज इक्वल टू V माइनस U, जिसे हम चेंज इन वेलोसिटी कह सकते हैं। We can say that it change in velocity, change in velocity हम इसे बोल सकते हैं। तो आपको जब भी ग्राफिकल मेथड से डेरिवेशन बताया जाए या उसको एक्सप्लेन करना हो, तो आपको सबसे पहले ये कुछ प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स लिखने हैं, इन्हें नोट कीजिए। उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड और थर्ड को हम डिस्कस करेंगे। From the graph, we can say that acceleration of the object is equal to change in velocity divided by time taken। भाई ग्राफ से हमें या नॉर्मली हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। वेलोसिटी चेंज कहां से कहां तक हो रही है, अभी मैंने आपको बताया कि ये वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, तो यानी कि DA डिवाइडेड बाय टाइम टेकन कितना है आपके पास, AB। लेकिन अगर हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में अगर हमने टीचर को, एग्जामिनर को पहले ही बता दिया कि भाई DA या AB किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और AB किसके पैरेलल है, OG के, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं DA अपॉन OG। अब वैल्यू देखिए, DA की वैल्यू क्या कैलकुलेट की थी, V माइनस U, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं DO माइनस AO डिवाइडेड बाय OG विच इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T। और एक्सेलरेशन का सिंबल हमने पहले ही थ्योरी में बता दिया था, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यू आपके पास आई है। अब हम इसे अगर हम ऐसे मैथमेटिकली इसको सॉल्व करेंगे, जैसे ये कि डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो A मल्टीप्लाई T विच इज इक्वल टू V माइनस U, माइनस का U इधर आएगा तो प्लस का U बनेगा। A मल्टीप्लाई T, इसको मैं 80 लिख सकती हूँ, प्लस U इज इक्वल टू V। तो अगर हम इसको सिंबलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करें, तो देखिए यही हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, V इज इक्वल टू U प्लस 80। इसको हमने ग्राफ की हेल्प से प्रूव किया है। तो ये आपके पास 1 मार्क्स इसका कंप्लीट हो गया एक तरीके से। तो आपने जो भी इनके सिंबल से DA OG, अगर मैं डायरेक्टली लिखती तो आप शायद नहीं समझ पाते, तो आपने थियोरेटिकल एस्पेक्ट में पहले बताए हैं, तो वहां पर क्या है, आपको इसके मार्क्स भी मिलेंगे और टीचर को या आपको भी कंफ्यूजन नहीं होगा, जिससे गलती होने के चांसेस भी कम रहेंगे। बेटा साइंस में थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल, खासकर फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं तो कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स भी आपको लिखने चाहिए, जो गिवन वैल्यूज होती है वो, या जो भी आपको डाटा दिया गया है ग्राफ वगैरह में, वो सारा लिखना चाहिए आपको, ठीक है। तो चलिए इसे नोट कीजिए। So let us discuss the second equation of motion. In this scenario, we will calculate the distance travel. एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी हम ग्राफ में डिस्टेंस ट्रेवल निकालते हैं, तो उस ग्राफ में जो भी आपके पास एरिया कवर्ड होता है वो ही डिस्टेंस ट्रेवल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड S इज इक्वल टू एरिया ऑफ O A, ग्राफ यहां तक ऐसे इंक्रीज हो रहा है, C B G और O A C B और G आप ये कह सकते हो। तो इसका जो है, अब ये पूरी फिगर क्या है, दो चीजों से मिलकर बनी है, एक ट्रायंगल है और एक आपके पास रेक्टेंगल है। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ O A B C यानी रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या नाम है उसका, A C और B।
बेटा रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। तो लेंथ कितनी है हमारे पास इस रेक्टेंगल के अंदर, लेंथ और ब्रेड्थ देखिए तो वैल्यूज आ गई OA मल्टीप्लाई AB या OG, कोई भी एक वैल्यू लिख सकते हो, प्लस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होती है, ठीक है। हाफ इंटू बेस, बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है AB और हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है CB, ठीक है। अभी अभी हमने DA को कैलकुलेट किया था, ठीक है, DA और CB इक्वल है। तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। OA को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है U मल्टीप्लाई OG को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है T प्लस हाफ S और S इंटू AB को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, AB किसके पैरेलल है OG के, और AB की वैल्यू क्या होगी एक तरीके से T और इसकी वैल्यू हो गई V माइनस U। अभी अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में V माइनस यू को कैलकुलेट किया। मैं आपको यहाँ रफली करके दिखा सकती हूँ कि हमने या फिर हमें पता है V माइनस यू अपॉन टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या है, एक्सीलरेशन। इस टी को इधर ले जाएंगे तो V माइनस यू इज इक्वल टू AT। तो V माइनस चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ गई, एक्सीलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो यहाँ ये वैल्यू पुट करेंगे S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ इंटू टी इंटू AT, ठीक है। और वैसे भी मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आई S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ, A को आगे लिखेंगे T और इंटू T मतलब T स्क्वायर। तो ये भी हमने ग्राफ से प्रूफ कर दी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफ से एक बार में बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्राफ में हम उसे कैसे यूज करें। तो बेटा जब भी हम ग्राफ में डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस कवर्ड या डिस्टेंस अंडर द ग्राफ, तो वो होता है एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ग्राफ यहाँ से इंक्रीज हुआ फिर यू इंक्रीज हुआ, तो वो ग्राफ में एरिया ये कवर्ड हुआ। इसमें दो फिगर बन रही थी, एक ट्रायंगल की फिगर थी, एक आपके पास रेक्टेंगल था। ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला हमने क्या लगाया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इस तरीके से उनमें हमने ये वैल्यू पुट करी और हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। तो इसे जल्दी से नोट कीजिए। So let us discuss the third and last case of the derivation। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, तीनों केसेस हम इसके बाद डिस्कस कर चुके होंगे। तो देखिए जल्दी से, अभी अभी हमने देखा कि डिस्टेंस S किसके बराबर था, एरिया ऑफ OACBG। और आप अगर इसको ध्यान से देखें तो ये आपके पास एक ऐसी फिगर है जिसे हम ट्रेपेजियम कहते हैं, जिसमें वन पेयर जो होता है वो पैरेलल साइड का होता है, दूसरा पेयर जो होता है यानी अपोजिट साइड्स का वो क्या है, नॉन पैरेलल साइड है। तो ये जो है हमारे पास ये एक ट्रेपेजियम है और इसमें हम ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। वो क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय द बेस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ OACB मतलब ट्रेपेजियम का लगाएंगे। तो देखो पैरेलल साइड कौन सी है, OA प्लस यहाँ पे ट्रेपेजियम में CG डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई OG, ठीक है। तो यहाँ पर देखो OA की वैल्यू U प्लस CG की वैल्यू क्या है आपके पास V डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। तो अब टाइम की वैल्यू निकालिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो देखो बेटा फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में लिख देती हूँ ऊपर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ पे टाइम नहीं आ रहा है इसलिए हम इस टाइम की वैल्यू को एलिमिनेट करेंगे फर्स्ट से। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू a, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे, v माइनस यू अपॉन a इज इक्वल टू टी, और ये वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो देखिए यहाँ पर पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो रखिए वैल्यू s इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 या 1 अपॉन 2 ऐसे लिख सकते हैं आप, 1 अपॉन 2 इंटू यू प्लस वी, ये u है, ठीक है, प्लस सॉरी मल्टीप्लाई
यहाँ पे वैल्यू क्या आई है, v माइनस यू अपॉन a। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो ये 2 डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, a डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, ये हो गया 2as। यहाँ क्या बचा, अच्छा एक रूल होता है a प्लस बी को b प्लस ए भी लिख सकते हैं, इसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं हम मैथ्स में। तो यहाँ पे मैं इसको v प्लस यू लिख सकती हूँ और ये हो गया v माइनस यू। अब देखो इसमें एक आइडेंटिटी बनेगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसे हम बोलेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा। मैथ्स की आइडेंटिटी है, ठीक है, अलजेब्रा के अंदर हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने सीखा कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफ की हेल्प से कैसे निकालते हैं। मैंने आपको तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से, उसके अलावा सिंपल ग्राफ भी सिखा दिए हैं, तो इन्हें ध्यान से पढ़ना, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।